My lovely students, welcome to Mathological. In this session, we'll be discussing questions of quantitative aptitude that appeared in the SLAP slot 3. Start करते हैं session. And if you have not already subscribed to the channel, subscribe to the channel as well as press the bell icon. And if you like the content, make sure to hit the like button as well. So first question, a man has a rhombus shaped farm ABCD. This farm is surrounded by a path of width 2 meters as shown in the diagram. If angle ADC is equal to 30 degrees, AD is equal to 10 meters, then area of the path क्या होगा? Okay, so the path is a rhombus and there is an inside rhombus that is ABCD and there is outside rhombus PQRS. और width of the path हमें given है equal to 2 meters and one side length of the inside rhombus is 10 and angle ADC, this angle is 30 degrees. Okay, since rhombus is also a parallelogram, area of parallelogram क्या होता है? Area of a parallelogram is equal to AB sin theta, where A and B are side lengths and sin theta is angle between those side lengths, isn't it so? So AD is 10, DC is also 10 because rhombus है, rhombus में तो sides equal होता है. So area will be, area of inside rhombus ABCD will be equal to 10 into 10 into sin 30 and sin 30 degrees is 1 by 2. So this will be 50 meters square. Okay, या फिर ऐसे भी सोच सकते थे कि if you drop a perpendicular from point A, vertex A, so 30 degree सामने साइड है, क्या वैल्यू होगा? This will be half that of hypotenuse because triangle, if this is let us say E मान लेते हैं इसको. So in triangle AED, which is a right angle triangle, AD is the hypotenuse और AD हमारा right angle है. So 30 degree सामने साइड क्या होगा? Just half of hypotenuse, यानी कि this will be equal to 5. तो height will be equal to 5 और base है 10, तो एरिया ऐसे भी निकाल सकते हो 5 into 10 will be equal to 50. क्या ये क्लियर है? Second condition is that width is 2 meters. So width is 2 meters. Okay. But हमें लेंथ चाहिए, PS का लेंथ चाहिए, तो PS कैसे मिलेगा? If we find out this length, ठीक है, ये लेंथ मिल जाए हमको. So for finding out this length, we know that this perpendicular, this length is 2 meters. ठीक है, इसमें बहुत लोगों को गलती यहाँ पे हुआ होगा कि उन्होंने ये जो हमारा लेंथ है along the side AD उसको 2 एज्यूम कर लिया होगा, बट width given है हमें, जैसे हमने हाइट एज्यूम करते हैं, ठीक है, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर एज्यूम करेंगे, ऐसा थोड़ी कहीं पे भी ले लोगे. सिमिलरली width भी, width इज ऑल्सो हाइट, सो हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होगा पाथ के, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा, यानी कि जो हमारा साइड है उसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है. सो दैट इज वाई दिस इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 2. ये 2 नहीं है. ओके, इस क्वेश्चन में यही गलती होने का स्कोप था. सो इफ दिस इज 2, दिस एंगल इज 30 डिग्री. सो इन दिस स्मॉलर ट्राइंगल 30 के सामने वाला साइड क्या है? 2 है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या होगा? दिस विल बी 4. दिस विल बी 4. क्लियर है? क्या समझ पा रहे हो? और जैसे ये क्लियर हो गया कि दिस इज 4, सिमिलरली दिस विल आल्सो बी 4. तो टोटल लेंथ कितना आ जाएगा PS का? दैट विल बी 4 प्लस 10 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 18 एंड हेंस एरिया ऑफ PQRS विल बी इक्वल टू 18 into 18 into sin 30. Okay, into sin 30 because ये एंगल भी हमारा 30 डिग्री होगा. So that will be 18 into 18 by 2, which is 162 meter square. 50 meter square is the area of ABCD. 162 meter square is the area of PQRS. So area of the path will be difference between the two. भाई path का area क्या होगा? Difference between the two. तो बस सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आंसर आ जाएगा 112 मीटर स्क्वायर. ठीक, दिस एरिया विल बी 162 minus 50 and hence 112 मीटर स्क्वायर. क्या क्लियर है? और आई एम प्रेटी श्योर कि बहुत सारे लोगों ने मिस्टेक किया होगा कि ये 2 मीटर को अलोंग द AD मान लिया होगा, तो उसकी वजह से 14 into 14 into sin 30 किया होगा और उसकी वजह से नवदीप आंसर आया होगा. कमेंट में मेंशन करना अगर तुमसे भी यही गलती हुआ तो. क्लियर है? सो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन. नेक्स्ट वन, a man can row 8 kilometers in still water in 120 minutes and in 90 minutes with the current. Find total time taken by him to row a distance of 20 kilometers with the current and to return to the starting point. Okay, to row a distance of 20 kilometers with the current and to return to the starting point. Total time कितना लगेगा? तो 20 किलोमीटर जाना है
along द स्ट्रीम और 20 किलोमीटर जाना है बैक अप स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर, डाउन 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम। सबसे पहले स्पीड फाइंड आउट करते हैं। तो स्पीड तो हमें गिवन है 8 किलोमीटर ही कैन रो इन 120 मिनट्स, यानी कि स्पीड ऑफ द बोट क्या है, स्पीड ऑफ द मैन क्या है एज सच, या फिर बोट का, क्योंकि मैन ने बोट ही तो रो कर रहा होगा। तो क्या स्पीड आ जाएगा 120 मिनट्स, यानी 2 आवर्स में ही इज ट्रैवलिंग, ही इज स्विमिंग, ही इज रोइंग 8 किलोमीटर। सो स्पीड आ जाएगा हमारा 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, बोट का स्पीड। एंड 90 मिनट्स विद द करंट, यानी कि 90 मिनट्स टाइम टेकन इज फॉर डाउन स्ट्रीम, बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड से टाइम टेकन इज 90 मिनट्स, 8 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। तो स्पीड क्या आ जाएगा 8 इंटू 2/3, बिकॉज 3/2 आवर्स में इज ट्रैवलिंग 8 किलोमीटर्स, सो 1 आवर में ही बी ट्रैवलिंग 8 इंटू 2/3, सो दैट विल बी 16/3 किलोमीटर पर आवर। बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड, तो यहां से स्ट्रीम का स्पीड हमें मिल जाएगा 16/3 - 4, विच विल बी 4/3 किलोमीटर पर आवर। क्या ये क्लियर है? बोट का स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम का स्पीड 4/3 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम टेकन कितना आएगा, टोटल टाइम टेकन टू ट्रैवल द डिस्टेंस 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, टोटल टाइम टेकन हो जाएगा 20 बाय बोट प्लस स्ट्रीम का स्पीड, विच विल बी टाइम टेकन इन ट्रैवलिंग डाउन स्ट्रीम, एंड टाइम टेकन इन ट्रैवलिंग अप स्ट्रीम विल बी 20 अपॉन बोट माइनस स्ट्रीम का स्पीड। तो 20 अपॉन बी प्लस एस क्या आएगा, ये वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है 16/3, और बी माइनस एस क्या आ जाएगा, दैट विल बी 20 अपॉन 4 - 4/3, so that will be 4 - 4/3, which will be equal to 8/3. So 20 into 3, 60/16 plus 60/8, so value आ जाएगा 120/60, 180/16 hours. This will be the answer. Option C will be the answer. Is that part clear? Okay. Clear है? Next question करते हैं. There are 4 letters and 4 envelopes. In how many ways can wrong choices be made? Wrong choices का मतलब क्या हुआ कि all letters should not be put into their correct envelopes. ठीक है, wrong choice कोई भी एक incorrect हो गया तो wrong choice हो गया। Total ways कितने होंगे, 4 letters हैं, 4 envelopes हैं। तो जब हमारे पास initially letters से 4 envelopes है, E1, E2, E3 and E4। अब तुम सबसे पहला लेटर सेलेक्ट किया, किसी एक एनवेलप में इंसर्ट करोगे, ठीक है। तो ऑप्शंस कितने हैं पहले लेटर के लिए? पहले लेटर के लिए, फर्स्ट लेटर के लिए, लेटर नंबर 1 के लिए देयर आर 4 ऑप्शंस, या तो एनवेलप 1 में जाएगा, या 2 में, या 3 में, या 4 में, ठीक है। अब किसी एक में तुमने डाल दिया, ठीक है। लेटर से एनवेलप 2 में चला गया लेटर 1, तो अब लेटर 2 के लिए ऑप्शंस कितने होंगे? 3, वो भी किसी एक में इंसर्ट कर दोगे। लेटर से एनवेलप 4 में इंसर्ट कर दिया, 2 ऑप्शंस बचे, तो लेटर 3 के लिए ऑप्शंस बचेंगे 2, और लेटर 4 के लिए फाइनली बचेगा 1। तो 4 × 3 × 2 × 1, बेसिकली 4 फैक्टोरियल बेस ऑफ अरेंजमेंट हो गए कि लेटर कौन से एनवेलप में जाएगा, 4 फैक्टोरियल अरेंजमेंट हो गए। टोटल केसेस बने हमारे 4 फैक्टोरियल, बट इन टोटल में से एक केस ऐसा होगा व्हेन एवरी लेटर हैज बीन इंसर्टेड इनटू द करेक्ट एनवेलप, ठीक है। सो 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे फाइनल आंसर के लिए, 4 फैक्टोरियल -1 विल बी रॉन्ग चॉइसेस, बिकॉज 1 इज द करेक्ट चॉइस। एग्जैक्टली 1 इज द करेक्ट चॉइस, ठीक है। एक चॉइस करेक्ट होगा जिसमें कि सारे के सारे लेटर्स हमारे करेक्ट एनवेलप में होंगे, बाकी सारी चॉइसेस इनकरेक्ट होंगी, तो 4 फैक्टोरियल -1 विल बी द आंसर। Next question, P and Q are real numbers. Find the values of P and Q if P square - 4PQ plus 6Q square - 4Q plus 4 is minimum. अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, हर एग्जाम में आ रहा है, कैट में भी ट्रेंड बना हुआ है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो इस क्वेश्चन में भी हमें यही करना है एग्जैक्टली कि अगर वैल्यू हमें मिनिमम करनी है तो उसके लिए परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। फॉर्म करते हैं परफेक्ट स्क्वायर, उसके बाद में जो बचेगा उसको मिनिमाइज करेंगे। सो P square - 4PQ, so P square - 4PQ can be written as 2 into P into 2Q, बेसिकली A square plus B square - 2AB, तो 2A तो मिल गया P बिकॉज P का स्क्वायर है, B हमारा 2Q आ गया, तो प्लस 2Q का होल स्क्वायर, ओके। और 6Q स्क्वायर था तो 4Q स्क्वायर तो ऐसे ही सेपरेट हो गया, 2Q होल स्क्वायर 4Q स्क्वायर, 2Q स्क्वायर बच गया, 2Q स्क्वायर - 4Q plus 4, so this will be P - 2Q whole squared plus 2Q स्क्वायर - 4Q plus 2 ले लोगे तो 2 into Q स्क्वायर - 2Q plus 1 plus 2 बच जाएगा। So this will become P - 2Q whole squared plus 2 times of Q - 1 whole squared plus 2. Now since these are perfect squares, they will always be greater than equal to 0. हमेशा नॉन नेगेटिव होंगे, तो अगर हमें वैल्यू को मिनिमाइज करना है, मिनिमम करना है, तो इनको 0 करना पड़ेगा। कब मिनिमम होंगे? जब ये वैल्यू 0 हो जाए हमारी, और मिनिमम वैल्यू आ जाएगा हमारा इक्वल टू 2।
मिनिमम वैल्यू विल बी 2. और कब होगा मिनिमम 2? व्हेन p माइनस 2q इज इक्वल टू 0 एंड q माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ओके, क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू तो पूछा नहीं, क्वेश्चन में वैल्यू पूछा p और q का, तो q इज इक्वल टू 1 आ जाएगा. एंड सिंस p माइनस 2q इज इक्वल टू 0, तो p विल बी इक्वल टू 2q. एंड सिंस q इज इक्वल टू 1, तो p विल बी इक्वल टू 2. p इक्वल टू 2, q इज इक्वल टू 1, विच इज नॉट एनी ऑफ द ऑप्शंस. ऑप्शन डी विल बी द आंसर. ऑप्शन डी विल बी द आंसर. ओके, क्लियर है. Next question, two alloys A and B contain iron and aluminium in the ratio 5:3 and 7:9 respectively. If equal quantities of these two alloys are melted and recast to form a new alloy, then find the ratio of iron and aluminium in the new alloy. So दो alloys हैं जिनको mix कर रहे हैं equal quantities में. So A में हमारा iron and aluminium है in the ratio 5:3 और B में the ratio is 7:9. And both are mixed in equal quantities. So 5 plus 3 का सम कितना आएगा? This is 8. So if we've taken 8 kg alloy A, उसमें 5 kg होगा आयरन, 3 kg होगा एल्यूमिनियम. और अगर B का लेंगे 7 plus 9 16 kg, तो उसमें 7 kg will be आयरन एंड 9 kg will be एल्यूमिनियम. बट हमें दोनों इक्वल क्वांटिटीज लेना है. तो सबसे पहले तो इक्वल कर दो. 8 है A और B है 16 यूनिट्स, तो A को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, तभी तो इक्वल होगा. अब क्वांटिटीज इक्वल हो गई, अब ऐड कर दो. अब A भी 16 हो गया, B भी 16 हो गया. सो नाउ यू आर एडिंग 5 into 10 plus 7 17 is iron and 6 plus 9 15 will be aluminium. तो आयरन और एल्यूमिनियम का रेशियो आ जाएगा 17:15. ऑप्शन A will be the answer. क्लियर है? अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस बात को? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये तो. नेक्स्ट वन, 5 6 7 210 7 8 9 504 एंड 8 9 10. सो बेसिकली सीरीज के फॉर्म में लॉजिकल क्वेश्चन दे दिया, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन दे दिया. 5 6 7 नेक्स्ट वैल्यू है 210, 7 8 9 नेक्स्ट वैल्यू इज 504 एंड 8 9 10 नेक्स्ट वैल्यू पूछा है क्वेश्चन में. ठीक है, तो 210 क्या हुआ? 5 into 6 into 7 is 210. 7 into 8 into 9, that is 504. So by this logic, 8 into 9 into 10 should be 720. बट ऑप्शन में कहीं पे 720 तो दिया नहीं है, तो क्या और लॉजिक हो सकता है? ठीक है, क्योंकि 720 दिया होता तो परफेक्टली उसको मार्क कर देते, बट 720 तो आंसर नहीं है यहाँ पे. तो और क्या लॉजिक बन सकता है? 5 6 7 ऑल दीज आर को प्राइम नंबर्स. ठीक है, सारे के सारे नंबर्स को प्राइम में, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इनमें. 7 8 9 ऑल्सो को प्राइम, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इनमें. तो इन दीज केसेस हमारा डायरेक्टली जो एलसीएम की वैल्यू आया है 210 ही होगा एलसीएम. प्रोडक्ट ही हमारा एलसीएम होगा, बिकॉज देयर इज नो common factor, but between 8 9 and 10, 8 or 10 have a common factor which is equal to 2. That is why LCM of 8 9 and 10 will not be equal to their product as such. ये values तो LCM है हमारी. 210 will be LCM for 5 6 and 7, 504 will be LCM for 7 8 and 9, but for 8 9 and 10 LCM will be equal to 360. सो एलसीएम के लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व होगा. 360 विल बी द आंसर. ऑप्शन डी. ओके, जो क्लिक करना चाहिए था, बिकॉज 720 का फैक्टर है 360, तो कनेक्ट कर पा रहे थे, कर सकते थे, सोच सकते थे. दो एग्जाम कंडीशंस में कई बार डिफिकल्ट होता है, बट नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं था, तो डेफिनेटली इसको चांस लेना चाहिए था, इसको मार्क करना चाहिए था. क्या क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. The ratio of ages of the mother and the father was 5:7 when their daughter was born. So when the daughter was born, ratio of ages of mother and father was 5:7. The ratio of ages of mother and father will be 7:9 when the daughter will be twice her present age. Twice her present age. So the ratio of ages will be 7:9. कब होगा? जबकि present age का twice होगा. तो अगर present age of daughter is x, तो age of daughter will be 2x by then. ठीक है. Question is asking what is the ratio of the present ages of mother and father. So difference of ages आ रहा है इनिशियली कितना आ रहा है? 2 यूनिट्स आ रहा है 5:7 में, और फाइनली भी 2 यूनिट्स आ रहा है. डिफरेंस ऑफ एजेस तो सेम ही रहेगा. तो यानी कि रेशियो हमारे अभी करेक्ट है, इनको और एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेशियो हमें इक्वल करना होता है सबसे पहले. ठीक है, 5 से 7 में जा रहे हैं, तो देयर इज अ इंक्रीज ऑफ 2 यूनिट्स. 7 से 9 में देयर इज अ इंक्रीज ऑफ 2 यूनिट्स, और डॉटर की एज 0 है, क्योंकि तब पैदा हुई थी जब रेशियो 5:7 था. अब 7:9 है, जबकि एज है 2x. तो इसके बीच में एग्जैक्टली मिडिल में एज x रहा होगा, और वही प्रेजेंट की बात है, वही प्रेजेंट का
एज होगा, isn't it so? तो 5 से 7 यानी 2 का इंक्रीमेंट हुआ है, 2x एज हो गई है. सो 1 का इंक्रीमेंट करोगे, सो वैल्यू आ जाएगा 6 फॉर मदर, और फादर का 1 का इंक्रीमेंट करोगे आ जाएगा वैल्यू 8, तो रेशियो आ जाएगा 6:8. कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है, विच विल बी 3:4 इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म. ओके, आंसर भी 3:4. क्लियर है? और ये सारी वैल्यूज हमने रेशियो में ली है 5:7. ठीक है, 5 और 7 एज थोड़ा है मदर और फादर का. अगर एज के हिसाब से लिखना है तो लेट अस से सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो 6 से, किसी भी एक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो. तो लेट अस से भी मल्टीप्लाइड वैल्यूज बाई 6. तो मदर और फादर का एज आ जाएगा 5 6 30, 7 6 42. तो इनिशियली आ गया 30 42. ओके, थोड़ा सा ज़्यादा ही आ गया, तो इसको चलो 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वैल्यूज को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो इंटू 4 कर दिया, तो एज आ गया हमारा 20 एंड 28. ठीक है, और व्हेन डॉटर वॉज बॉर्न तो एज 0 हो गया. एंड आफ्टर फ्यू ईयर्स एज बिकम्स 7 into 4 28 फॉर मदर एंड 9 into 4 36 फॉर द फादर. तो एज ऑफ द डॉटर विल बी 8 years. तो 4 years एट प्रेजेंट एज होगी डॉटर की, क्योंकि और हमेशा देखो ये डिफरेंस सेम है तभी हम ऐसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अदरवाइज पहले डिफरेंस को इक्वल करेंगे उसके बाद में ही प्रोसेस करेंगे. ठीक है, तो एट प्रेजेंट फादर का एज क्या आ जाएगा 24, एवरेज ऑफ 20 एंड 28 मिडिल वैल्यू, और 32 फॉर द फादर. सो दिस विल बी द रेशियो 24:32 विच इज 3:4. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. 1% of 200% of 720 is what percent of 0.1% of 60? 1% of 200%, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट यहाँ पे गलती होने का स्कोप है बिकॉज सारे ऑप्शंस में क्या है, 0 का ही डिफरेंस है. तुम परसेंटेज को ढंग से कन्वर्ट नहीं करोगे तो गलती कर दोगे यहाँ पे. ठीक है, तो हमारा वैल्यूज को किसको इक्वल करना, 1% ऑफ 200% ऑफ 720 एंड दैट इज इक्वल टू x%, लेट अस से x वैल्यू मान लिया, x% ऑफ 0.1% ऑफ 60. ठीक है, तो परसेंटेज को परसेंटेज से कैंसिल करना, जैसे 0.1% है 1% है, कैंसिल मारो. सो बचेगा कितना, 10 बचेगा, 10 टाइम्स है. 60 और 720 को कैंसिल करोगे 12 बचेगा. ठीक है, क्लियर है? तो अब तुम 200% और x% बचा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, x विल बी 200 into 12 विच इज 2400 into 10 24,000. x इज इक्वल टू 24,000 बिकॉज यहां भी परसेंटेज है और यहां भी परसेंटेज बचा है, तो चाहो तो परसेंटेज को कैंसिल कर दो, अदरवाइज x विल कम आउट टू बी इक्वल टू 24,000. क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो, कैसे सॉल्व करोगे एग्जैक्टली इसको, ये गलती नहीं हो तुमसे. ठीक है, अदरवाइज परसेंटेज मीन्स फॉर एग्जाम्पल 1% इंप्लाइज 1/100. तो ये भी कर सकते हो कि 1% को लिख देते 1/100 इंटू 200/100 इंटू 720 दैट इज इक्वल टू x/100 इंटू 0.1/100 इंटू 60. और डेसिमल हटाओगे तो 1 0 और एक्स्ट्रा आ जाएगा. अभी 100 से 100 गया यहाँ पे, 1 0 यहाँ से गया, और इस 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो गया. ठीक है, सो 6 से कैंसिल कर दोगे तो दिस विल बी 120. तो x विल बी इक्वल टू 120 to 200 24,000. ओके, बट बेस्ट है यहीं पे खत्म करो क्वेश्चन को. क्यों अननेसेसरी परसेंट को 1/100 में लिखना, वहां भी गलती हो सकती है. नहीं लिखोगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि सही करोगे, बिकॉज परसेंटेज को परसेंटेज से कैलकुलेट कैंसिल करो हमेशा, बस इतना ध्यान रखो, नंबर को नंबर से कैंसिल करो, और जहां पे फिर भी एक्स्ट्रा बच जाए परसेंटेज तो 1/100 लिख दो वहां पे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. 3 workers X, Y and Z are appointed to do a job. They together started the job, but Y left after 3 days and when 37% of the job was done. So in 3 days, the work completed was 37%. X, Y and Z completed 37% work in 3 days. The remaining job was completed by X and Y in 7 days. So in 7 days, X and Y completed the remaining work, which will be 63%, which implies that 9% work was completed per day by X and Y. Also saying ratio of efficiency of X and Y is 4:5. तो X और Y का efficiency का ratio क्या है, 4:5. टोटल आ गया 9 units. So 9 units will be equal to 9%. यानी कि X is working 4% per day and Y is working 5% per day. Isn't it so? क्योंकि 9 units की वैल्यू 9% है. क्या ये क्लियर है? 3 days में कितना वर्क करेंगे X और Y? X will be working 4 into 3 12%, Y will be working 5 to 3 15%, और Z वर्क करेगा बचा हुआ 12 + 15 हो गया 27. तो Z ने वर्क किया होगा 10% इन 3 days.
तो यहाँ से z की एफिशिएंसी भी आ जाएगी वन डे की, विच विल बी 10/3%. एंड क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट विल बी नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय द फास्टेस्ट वर्कर. फास्टेस्ट वर्कर कौन है? z स्लोएस्ट है, 10/3%, 3.33% स्लोएस्ट है. फास्टेस्ट होगा x, फास्टेस्ट होगा सॉरी y 5%. तो टाइम टेकन बाय y विल बी 5% वर्क कर रहा है वन डे में, तो टाइम टेकन विल बी 100% बाय 5%, यानी कि 20 डेज. 20 डेज. ऑप्शन बी विल बी द आंसर. क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. If the centroid of the triangle formed by the points 0, 0, cos theta, sin theta and sin theta minus cos theta lies on the line y is equal to 3x, then find the value of tan theta. Now इसके लिए कोऑर्डिनेट में ये पता होना चाहिए सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है. If coordinates are x1, y1, x2, y2 and x3, y3, the formula for centroid is x1 plus x2 plus x3 divided by 3, y1 plus y2 plus y3 divided by 3. So centroid का formula will be 0 plus cos theta plus sin theta by 3. Comma 0 plus sin theta minus cos theta by 3. And since centroid is lying on the line y is equal to 3x, तो इसको satisfy करना चाहिए. y is equal to 3x को satisfy करना चाहिए, तो y coordinate should be equal to 3 times of x coordinate. तो sin theta minus cos theta by 3 should be 3 times of cos theta plus sin theta by 3. 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो sin theta minus cos theta will be equal to 3 times of cos theta plus 3 times of sin theta. अब cos को एक साइड में लेके आ जाओ, sin को एक साइड में लेके चले जाओ, तो sin theta को एक साइड में लेके चले गया तो -2 sin theta, sin theta -3 sin theta, तो दैट विल बी -2 sin theta, and this will be equal to cos theta plus 3 cos theta. So this becomes -2 sin theta is equal to 4 cos theta. Divide by cos theta, so this becomes sin theta by cos theta is equal to 4 upon -2, and hence tan theta is equal to -2. This will be our answer. Tan theta equal to -2, option B. Clear? Okay. ठीक है. Next question. A ball of diameter 10 cm is kept on top of a hollow cylinder standing vertically. The height of the cylinder is 5 cm while its volume is 80 pi cm cube. Then vertical distance in centimeter of the topmost point of the ball from the base of the cylinder क्या होगा? Ball का diameter given है 10 cm and it is kept on the top of a hollow cylinder standing vertically. Height of the cylinder is 5 cm while its volume is 80 pi cm cube. Okay, let us say this is the wall. So diameter is 10 centimeter and volume of cylinder is 80 pi centimeter cube, which is pi r square h, and h is equal to 5. So pi into r square into 5 is equal to 80 pi. Pi से pi cancel हो गया, r square is equal to 16. So radius of the cylinder is equal to 4. ठीक है, radius of cylinder this is equal to 4 and radius of sphere is equal to 5. ठीक है, 3 4 5 वाला ट्रायंगल बन रहा है, so this distance will be 3. तो height of the center of the sphere from height of the center of the spherical ball from the base of cylinder, that will be base नहीं, from the top of the cylinder, that will be equal to 3 units. ठीक है, this distance is equal to 5, this distance is 3 and height is equal to 5. तो total
हाइट ऑफ द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द बॉल फ्रॉम द बेस ऑफ द सिलेंडर क्या होगा? दैट विल बी 5 + 3 + 5, तो दैट इज 13. ऑप्शन ए विल बी द आंसर. क्लियर है? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. A speaks truth 4 out of 5 times and B speaks truth 7 out of 8 times. Find the probability that they contradict each other when they are asked to state a fact. Cases क्या बनेंगे? One case will be when A will be speaking truth and B will be lying. Second case will be when A is lying and B is speaking truth. तो या तो फर्स्ट केस होगा या सेकंड केस होगा. प्रॉबिलिटीज निकाल लो. A स्पीकिंग ट्रूथ का प्रॉबिलिटी है 4/5 एंड B स्पीकिंग ट्रूथ का प्रॉबिलिटी है 7/8. तो A विल बी स्पीकिंग ट्रूथ एंड B विल बी लाइंग, तो प्रॉबिलिटी हो जाएगा A स्पीकिंग ट्रूथ का 4/5 और B लाइंग का प्रॉबिलिटी विल बी 1 - 7/8, तो दैट इज 1/8. और एनी एडिशन, A इज लाइंग तो 1/5 एंड B स्पीकिंग ट्रूथ प्रॉबिलिटी विल बी 7/8. So this will be our answer. 4/5 into 1/8, 4/40 plus 7/40, answer will be 11/40. Option A will be the answer. Clear है? Okay. ठीक है. Next question. Number of bacteria doubles every 3 days. In 30 days, by what % would the bacteria population increase? Every 3 days the number of bacteria is increasing, doubling itself. तो अगर day 0 पे the population is 1, तो day 3 पे the population will be 2. Day 6 पे the population will be 2 into 2, 4. Day 9 पे it will be 4 into 2, that is 8, which is 2 cube. ठीक है. और day 12 पे this will be 16 and so on and so on. तो 30 days में क्या है? 3 times 3 into 10, तो 10 टाइम्स पॉपुलेशन हमारा डबल होगा, तो यानी कि 2 to the power 10 टाइम्स हो जाएगा ऑफ इनिशियल वैल्यू, और 2 to the power 10 इज 1024. सो इफ इनिशियल पॉपुलेशन ऑन डे 0 इज 1, तो ऑन डे 30 इट विल बी 2 to the power 10 into 1, विच इज 1024. बट क्वेश्चन ने पूछा है बाई वॉट % द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, तो इंक्रीज आया हमारा 1023 का, और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दिस विल बी 102300. ठीक है, बिकॉज 1023 डिवाइडेड बाई बेस विच इज इक्वल टू 1 into 100. दिस विल बी द आंसर. क्लियर है? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. A company sold 2 products A and B, where 2/3 of the budget was allocated to product A, which yields 17% return, and remaining budget was allocated to product B, which yields 20% return. 17% return is given by product A, and 20% return is given by product B. We need to find out कि overall return कितना होगा, यानी average value क्या होगा. While the ratio of the budget is 2/3 budget is allocated to product A and 1/3 to product B. So ratio आ गया 2:1 का. सो एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा? ठीक है, 2 + 1 टोटल है हमारा 3 यूनिट्स, और यहां डिफरेंस आ रहा है 3% का, तो 17 + 1%, बिकॉज 3 यूनिट्स इज इक्वल टू 3%, सो 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 1%, 17 + 1% आ जाएगा 18% एवरेज आ जाएगा. ऑप्शन ए. अब इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन क्या होगा? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्माइल आर अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल वेज एंड द वर्ड्स फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन डिक्शनरी ऑर्डर, देन व्हाट विल बी 97th वर्ड? लेटर्स ऑफ द वर्ड स्माइल आर अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल वेज एंड वर्ड्स आर अरेंज्ड इन डिक्शनरी ऑर्डर. तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले तो लिख लो इसको, E I L M S. नाउ स्माइल, स्माइल तो नहीं, क्वेश्चन पूछा 97th वर्ड क्या होगा, तो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ई कितने होंगे? 4 फैक्टोरियल, बिकॉज ई तो स्टार्ट में आ गया, बाकी 4 नंबर्स 4 लेटर्स अरेंज होंगे 4 फैक्टोरियल तरीके से 24. सिमिलरली 24 वर्ड्स विल बी स्टार्टिंग विद आई 4 फैक्टोरियल 24 वर्ड्स. 24 वर्ड्स विल स्टार्टिंग विद एल 24/m, तो 96 वर्ड्स तो पास ऑन हो जाएंगे, जो कि ई आई एम और एल से स्टार्ट होंगे. एस से स्टार्ट होगा, सबसे पहला वर्ड होगा 97th वर्ड, एंड दैट विल बी स्टार्टिंग विद एस, और उसके बाद मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दोगे SEILM, तो SEILM विल बी द आंसर सी. ठीक है, अगर 98th पूछता जस्ट इन केस, तो क्या आंसर आता? S और E और I तो अपनी जगह होते, बस L और M को इंटरचेंज कर देते, SEIML वुड हैव बीन 98th.
क्लियर है? ठीक है, अगर 99th पूछता तो क्या वर्ड होता हमारा? एस और ई तो अपनी जगह पे रहते, बट क्योंकि एम और एल का अरेंजमेंट तो हो गया है, तो अब तुम आई की जगह पे लाते। ठीक है, तो आई के बाद नेक्स्ट क्या है? एल है, तो एस ई एल हो जाता। ठीक है, एस ई एल, और फिर बचता क्या हमारा? आई और एम बचता, तो इसके बाद में आता आई, फिर आता एम। देन 100th वुड हैव बीन एस ई एल एम आई एंड सो ऑन। ऑप्शन हमारा सी आंसर होगा, एस ई आई एल एम फॉर दिस क्वेश्चन। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, सो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, और बाकी 5 क्वेश्चंस का एग्जैक्ट लैंग्वेज मुझे मिला नहीं है, कमेंट में तुम मेंशन कर देना अगर लैंग्वेज किसी क्वेश्चन को तुम्हें एग्जैक्टली पता है। टाइम वर्क का एक और क्वेश्चन था जिसमें कि पेज टाइपिंग करना था, आंसर वॉज 60 फॉर दैट क्वेश्चन। देयर वाज अनदर डीआई क्वेश्चन वेयर द आंसर वॉज 107.32%, मोस्ट प्रॉब्ली बिकॉज एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं मिला है, तो आई कैन नॉट बी श्योर ऑफ द आंसर। एंड देयर वाज अनदर क्वेश्चन ऑफ ABCD चॉकलेट्स पूछा था, ई का आंसर विल बी 1। देयर वाज द फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन SPD 3/2 was the answer, and there was another LCM based question, answer was 10-12. These were the 5 questions जिनका कि एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं मिला है, तो कमेंट में मेंशन कर दोगे तो एक बार आई विल एक्सप्लेन डिटेल फॉर दोज क्वेश्चंस एज वेल। ठीक है, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई हैव ट्राई टू एक्सप्लेन विद द कंप्लीट लैंग्वेज। एंड अगर सॉल्यूशन समझ में आया, इफ यू आर एबल टू अप्रिशिएट द सॉल्यूशंस, देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल, एंड देयर इज एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन व्हाटसोएवर, देन मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट एज वेल। Okay, that is all for this session, and bye bye, take care and keep learning. Okay.